Hello dear students, hereby I welcome you to the next sub-module of the module named Ruling the Countryside. So let us see what we are going to study in this sub-module. So in this sub-module, we will be studying about demand for Indian indigo. Britain turns to India for the indigo plantation. The problem with niche cultivation, indigo on the land of the riots, and the Blue Rebellion and what happened after that. Now, the indigo plant, which grew popularly in the tropics by the 13th century, Indian indigo was being used by cloth manufacturers in Italy, France, Britain to dye clothes. However, only small amounts of Indian indigo reached the European market, and what happened? Its price was very high. So European cloth manufacturers therefore had to depend on another plant known as woad to make violet and blue dyes. Now, being a plant of the temperate zones, woad was more easily available in which region? In the Europe. So, and where was it grown? It was grown in northern Italy, southern France, and in parts of Germany and Britain. Now, worried by the competition from indigo, woad producers in Europe pressurized their governments to ban the import of indigo. So, what happened after that? Cloth dyers, however, always preferred indigo because India produced it and it had a rich blue color, whereas the dye from woad was pale and dull. But by the 17th century, European cloth producers persuaded their governments to relax the ban on indigo imports. So the French began cultivating indigo in the Saint Dominic in the Caribbean islands, the Portuguese in Brazil, the English in Jamaica, and the Spanish in Venezuela. Indigo plantations also came up in many parts of North America. By the end of the 18th century, the demand for Indian indigo grew further. And what happened then? The Britain began to industrialize and its cotton production expanded dramatically, creating an enormous new demand for cloth dyes. So while the demand for indigo increased, its existing supplies from the West Indies and America collapsed for a variety of reasons. Between 1783 and 1789, the production of indigo in the world fell by half. Cloth dyers in Britain now desperately looked for new sources of indigo supply. So what happened? Indigo plants पहले ट्रॉपिक्स में हो रहा था और 13th सेंचुरी में क्या हुआ? इंडियन इंडिगो यूज कर रहे थे ये क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स कहाँ? इटाली, फ्रांस, ब्रिटेन. यहाँ पे क्यों? सो दैट कलर्स देने के लिए क्लॉथ मटेरियल को. लेकिन बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडियन इंडिगो यूरोपियन मार्केट तक जाता था और उसका प्राइस भी बहुत हाई था. सो यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स को क्या करना पड़ता था? उनको और एक सोर्स पे डिपेंड करना पड़ता था, दैट इज द वोड. वहां पे एक प्लांट होता था यूरोप का ग्रोन, उसका नाम था वोड. वो वायलेट और ब्लू डाइस बनाने में मदद करता था. सो क्या हुआ? ये वोड प्लांट जो था ये टेम्परेट जोन में ग्रो करता था और वहां पे ये चीप भी था. सो ये यूज करते थे इटाली, नॉर्दर्न फ्रांस, यहाँ के लोग. अब क्या हुआ? वहां पे ये वोट प्रोड्यूसर्स को पता चल गया द इंडियन इंडिगो वाज बेटर इन क्वालिटी देन देम. सो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इंपोर्ट बैन कर दिया इंडिगो का. लेकिन क्लॉथ डायर्स हमेशा इंडियन इंडिगो ज्यादा प्रेफर करते थे क्योंकि इसका कलर बहुत अच्छा था. इट वाज वेरी रिच ब्लू. लेकिन जो वोट से जो डाई आता था उसका कलर पेल और डल था. बाय द 17th सेंचुरी में क्या हुआ? यूरोपियन क्लॉथ प्रोड्यूसर्स गवर्नमेंट्स को फिर से उनका बैन रिलैक्स करने को बोला. देन फ्रेंच कहाँ कल्टिवेट करना स्टार्ट किया इंडिगो? सेंट डोमिनिक में. लेकिन क्या हुआ? धीरे धीरे इंडियन इंडिगो का डिमांड बहुत बढ़ गया 18th सेंचुरी के बाद से.
और क्या हुआ, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया और उसका कॉटन प्रोडक्शन भी ज्यादा हो गया। इसके लिए क्या हुआ, क्लॉथ डाइज का बहुत डिमांड बढ़ गया। लेकिन एट द सेम टाइम सब जगह में, अमेरिका, वेस्ट इंडीज, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे डाई प्रोडक्शन, दैट इज इंडिगो प्रोडक्शन पूरा फॉल हो गया। लेकिन अब क्या है, द क्लॉथ इज अवेलेबल, द डिमांड इज वेरी हाई, बट देर इज लैक ऑफ इंडिगो। अब क्या हुआ, ब्रिटेन डेस्परेट हो गया इंडिगो का न्यू सोर्सेस पाने के लिए। तब उन्होंने क्या डिसाइड किया, दे डिसाइडेड टू टर्न डिपेंड अपॉन इंडिया टू फॉर द सप्लाई ऑफ इंडिगो. So what happened, they were facing with the rising demand for indigo in Europe. So what the company did was, it looked into India's for ways to expand the area under indigo cultivation. From the last decades of the 18th century क्या हुआ, इंडिगो कल्टीवेशन बंगाल में रैपिडली इंक्रीज कर गया और बंगाल इंडिगो पूरा वर्ल्ड मार्केट को डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। 1788 में जितना भी ब्रिटेन में इंपोर्ट होता था इंडिगो, उसमें से 30% इंडिया से जाता था और 1810 में यही 30% हो गया बढ़ के 95%। अब कमर्शियल एजेंट्स जो थे इंडिगो ट्रेड ग्रुप का, उन्होंने क्या किया, कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिगो प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। और जितना सालों बीतता गया, बहुत सारे इंडिगो ऑफिशियल्स क्या कि अपना जॉब छोड़ के उन्होंने इंडिगो बिजनेस में पैसा डालना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इट वाज दे वर टोटली अट्रैक्टेड बाय द प्रोस्पेक्ट ऑफ वेरी हाई प्रॉफिट्स। मतलब यहाँ पे इंडिगो प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा प्रॉफिट था, सो इसीलिए हर कोई अब सब कुछ छोड़ के इंडिगो प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। इंडिया में बहुत सारा स्कॉट्समैन और इंग्लिशमैन भी आए, सो आके वो लोग क्या हो गए, प्लांटर्स ऑफ इंडिगो। और जिनके पास पैसा नहीं था इन्वेस्ट करने के लिए, वो भी प्रोड्यूस कर सकते थे इंडिगो कंपनी से लोन्स लेके, और जो छोटा छोटा बैंक्स होता था उनमें से भी लोन लेके। तो हर कोई आके इंडिया में अब इंडिगो प्रोड्यूस करना चाहता था। अब दो तरीका था, बहुत सारे तरीके थे इंडिगो कल्टीवेशन में, उनमें से दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस थे, वन वाज निच, अनदर वाज राती। अब निच कल्टीवेशन में क्या था, प्लांटर को इंडिगो प्रोड्यूस करना पड़ता था अपने लैंड में, जो कि वो डायरेक्टली कंट्रोल करता था। वो दो तरीका था, इधर वो लैंड बाय कर लेता था या फिर उस पे रेंट लेके अदर जमींदार से उनपे इंडिगो का प्रोडक्शन करता था। और कैसे करता था, उनमें लेबरर्स को एम्प्लॉय करके। लेकिन प्लांटर्स को एक प्रॉब्लम हुआ, मतलब द इन्वेस्टर्स हु वर इन्वेस्टिंग इन द इंडिगो प्रोडक्शन, एरिया को एक्सपैंड करना उनके लिए मुश्किल हो गया, सो दैट दे कुड आल्सो इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो। इंडिगो सिर्फ कल्टिवेबल था फर्टाइल लैंड्स में, और ये फर्टाइल लैंड सब में ऑलरेडी डेंस पॉपुलेशन था। सिर्फ स्मॉल स्मॉल प्लॉट्स था एक जगह के ऊपर स्कैटर्ड हुआ, जिसमें प्लांटेशंस पॉसिबल था इंडिगो का। लेकिन प्लांटर्स को क्या जरूरत था, बहुत बड़ा बड़ा एरियाज कॉम्पैक्ट ब्लॉक्स में, सो दैट दे कुड कल्टिवेट इंडिगो। उन्होंने क्या कोशिश किया, इंडिगो फैक्ट्री के आजू बाजू में जो लैंड था वो लीज में ले लेने के लिए, और उसमें जो पीजेंट्स थे उनको निकाल दिया उस एरिया से। लेकिन इस वे में भी एक प्रॉब्लम था, बिकॉज वंस दे रिमूव द और एविक्टेड द पीजेंट्स और द लेबरर्स ऑफ दैट लैंड, देयर वर ऑलवेज कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टेंशंस। और लेबर को एक जगह से अलग जगह मोबिलाइज करना या फिर हटाना भी उतना इजी नहीं था। एक बड़ा प्लांटेशन के लिए बहुत ज्यादा हैंड्स, मतलब लेबर्स होना जरूरी है, और लेबर एक इस टाइम में जरूरत था, लेकिन ये लेबरर्स अभी अपना राइस कल्टीवेशन पे बिजी थे। सो ये एक प्रॉब्लम था निच कल्टीवेशन को लेके। और एक प्रॉब्लम जो कि था वो है, निच कल्टीवेशन में बहुत सारा प्लाउज और बुलॉक्स चाहिए था। 1 बीघा इंडिगो प्रोड्यूस करने के लिए 2 प्लाउ चाहिए था,
सो एक प्लांटर का अगर 1000 बीघा जमीन होता तो उनके 2000 प्लाउज लगता था, लेकिन ये 1000 बीघाज और ये जो प्लाउज थे ये भी सारा पीजन्स ने राइस कल्टीवेशन के लिए इन्वेस्ट कर दिया था. सो इन्वेस्टिंग ऑन परचेज एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लाउज ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया. सप्लाईज भी नहीं मिलता था पीजेंट से, बिकॉज उनका सब जो रिसोर्सेज थे वो सब राइस फील्ड्स में एम्प्लॉयड थे. लेकिन इसी टाइम में इंडिगो प्लांटर्स को भी इसका जरूरत था. सो इसीलिए एक प्रॉब्लम हो गया. टिल लेट 19th सेंचुरी क्या हुआ, द प्लांटर्स नहीं चाहते थे नीच कल्टीवेशन में लैंड एक्सपेंड करने के लिए, और 25% से भी कम लैंड प्रोड्यूसिंग एरिया था इंडिगो प्रोडक्शन के अंदर. और बाकी जो एरिया था वो एक और प्रोसेस ऑफ कल्टीवेशन के अंदर था, दैट वाज द रायती सिस्टम. नाउ वी विल बी स्टडीइंग अबाउट द रायती सिस्टम. Now, what is the indigo plantation on the land of riots? ये जो रायती सिस्टम था उसमें प्लांटर्स को फोर्स किया गया था, मतलब द रायट्स, द प्लांटर्स used to force the riots to sign a contract or an agreement known as the satta. At times, they pressurized the village headmen to sign the contract on behalf of the riots. Now, those who signed a contract got cash advances from the planters at very low rates of interest to produce indigo. But the loan committed the riot to cultivating indigo on at least 25% of their land area under their holding. So the planter provided the seed and the drill, while the cultivators prepared the soil, sowed the seeds, and looked after the crop. Now, when the crop was delivered to the planter after the harvest, what happened? A new loan was given to the riot, and that cycle started all over again. So peasants पहले जो कि बहुत टेम्पटेड थे कि इस लोन्स में से बहुत प्रॉफिट होगा उनका, बहुत जल्दी उनको समझ में आ गया कितना हार्श था ये सिस्टम. जो प्राइस उनको मिलता था इंडिगो प्रोडक्शन के लिए वो बहुत ही कम था, और ये लोन्स का जो साइकिल था ये कभी एंड नहीं होता था, ऊपर से उनको इंटरेस्ट देना पड़ता था, और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स था इसमें. प्लांटर्स बोलते थे इन पीजेंट्स को कि उनका जो सॉइल था उसका बेस्ट पोर्शन में इंडिगो प्लांट करने के लिए, लेकिन पीजेंट्स उस बेस्ट पोर्शन में राइस कल्टीवेट करना चाहते थे. और मोरोवर क्या था, इंडिगो प्लांट का बहुत डीप रूट्स था और सॉइल का फर्टिलिटी वो पूरा ले लेता था. और क्या होता था, एक इंडिगो हार्वेस्ट के बाद लैंड को राइस कल्टीवेशन के लिए यूज करना इम्पॉसिबल हो जाता था. सो इसके वजह से द अमाउंट ऑफ रिजेंटमेंट अमंगस्ट द peasants developed during this time because they were immensely forced by the planters to grow indigo on their lands at the cost of their own losses. So इसीलिए this was the result that took place in the form of the Blue Rebellion. Now, what was the Blue Rebellion? In March 1859 क्या हुआ, thousands of ऐसे peasants जिनको हम riots बोलते हैं बंगाल में, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया इंडिगो ग्रो करने के लिए. और जैसे ही रिबेलियन स्प्रेड हो गया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लांटर्स को रेंट देने से भी इनकार कर दिया और इंडिगो फैक्ट्रीज को स्वॉर्ड, स्पीयर्स, बाउज और एरोज लेके अटैक करना स्टार्ट किया. वुमेन भी इस फाइट में शामिल हो गए, पॉट्स, पैन्स, किचन इम्प्लीमेंट जो कुछ भी था वो सब लेके फाइट करने के लिए. ना जो भी प्लांटर्स के लिए वर्क करता था इस टाइम में उनको सोशली बॉयकॉट किया जाता था. और जो गोमास्तास नाम के लोग थे, मतलब प्लांटर्स का जो एजेंट्स थे, वो जब रेंट लेने आते थे उनको बीट किया गया, मतलब उनको मारा गया. रायट्स ने स्वोर किया, मतलब उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि वो और कभी भी एडवांस लेके इंडिगो नहीं बनाएंगे अपने लैंड पे. और प्लांटर्स का जो लठियाल्स था, मतलब जो लोग जो बड़ा बड़ा लाठीज लेके घूमते थे, उनसे भी एम्बेरेस्ड होने में उनको कोई दिलचस्पी नहीं था. द इंडिगो सिस्टम बहुत ही ऑप्रेसिव था, मतलब बहुत ही टॉर्चरस था. सो एवरीबडी स्टार्टेड राइजिंग इन रिबेलियन अगेंस्ट देम. और क्या हुआ, 1859 में
इंडिगो का जो रायट्स थे, मतलब द पीजेंट्स, उनको लोकल जमींदार्स का भी सपोर्ट मिल गया, विलेज हेडमैन का भी सपोर्ट मिल गया, जो कि सब अगेंस्ट हो गए थे प्लांटर्स के। क्यों? क्योंकि बहुत सारे विलेजेस में हेडमैन को फोर्स किया जाता था इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट्स में साइन करने के लिए। उन्होंने क्या किया, पीजेंट्स को इकट्ठा किया करके पिच्ड बैटल्स फाइट किया, वो लठियास के साथ, जो भी उनको एम्बैरेस करने आते थे। और जमींदार्स भी पूरा विलेज घूम घूम के क्या किया, राइट्स को एनकरेज किया ताकि वो लोग प्लांटर्स के अगेंस्ट विरुद्ध करें। So the zamindars were unhappy with the increasing power of the planters and agree at being forced by the planters to give them land on long leases. Because why? The power of the planters were increasing rapidly, and they used to force the zamindars to give them lands forcefully for long time of leases. क्या हुआ, आफ्टर 1857 का जो रिवोल्ट हुआ, उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत वरी हो गया कि ऐसा ही और भी रिवोल्ट्स होगा अगर इंडिगो प्लांटेशन नहीं स्टॉप किया गया। तभी क्या हुआ, ये जो सिमरिंग रिवोल्ट हो रहा था, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर को पता चलने के बाद ही वो तुरंत इस रीजन पे आके घूम के गए। राइट्स को लगा ये घूमना उनके लिए सिंपैथी है गवर्नमेंट की ओर से। इन 12/7 में क्या हुआ, मैजिस्ट्री जो थे एशली ईडन, उन्होंने नोटिस इशू किया कि राइट्स को अब से और कोई भी कंपेल नहीं करेगा टू प्रोड्यूस इंडिगो ऑन देयर फील्ड्स। और ये भी बोला गया, एक बात हुआ कि क्वीन विक्टोरिया ने भी डिक्लेयर किया है कि इंडिगो और नहीं होना चाहिए इंडिया में। सो इसी तरीके से धीरे धीरे इंडिगो प्लांटेशंस को इंडिया में स्टॉप किया गया और बहुत सारा रिबेल्स, बहुत सारा प्रतिरोध, बहुत सारा फाइट्स हुआ। कैलकाटा में जो भी इंटेलेक्चुअल्स थे वो तुरंत इंडिगो डिस्ट्रिक्ट्स में जाके उनके जो बैड कंडीशंस थे उनको लेके लिखना स्टार्ट कर दिया। और फाइनली महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से लौट के आए, क्या हुआ, एक पीजेंट बिहार से उनको राजी करवाया कि चंपारण विजिट करके देखने के लिए इंडिगो कल्टीवेटर्स का कितना बुरा हाल है। क्योंकि तब तक ये प्लांटर्स बंगाल में तो बंद हो गया रिवोल्ट होने के बाद, वो लोग क्या किया, वो शिफ्ट हो गए बिहार में जाके वो ऐसे ही लोगों को टॉर्चर करके वहां पे भी प्लांटेशंस ऑफ इंडिगो स्टार्ट कर दिया था, द प्लांटर्स। सो वहां पे बंद करने के लिए नाउ महात्मा गांधी वाज अबाउट टू टेक अ स्टैंड। और यहाँ से ही 1917 में जब महात्मा गांधी विजिट किया चंपारण, यहाँ से चंपारण मूवमेंट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर स्टार्ट हुआ। So this is how India was being exploited by the company for producing indigo plantations. Thank you.